اگر ہم یہاں سے ایک قدم بھی بستی کی حدود میں داخل ہو گئے تو جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ میں اپنے دوستوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، لہٰذا میں نے عملیات کا سامان لالٹین اور کسی ایک تھیلے میں ڈالی اور بستی کے قبرستان کی طرف چل پڑا۔ میں نے عملیات پڑھ کر اپنی حفاظت کر لی تھی۔ یہ قبرستان ایک ٹیلے پر بنا ہوا تھا جس پر گھنی اور جھاڑیاں تن آور درخت اگے ہوئے تھے۔ میں ایک پگڈنڈی کے ذریعے قبرستان کے قریب پہنچ گیا۔ پگڈنڈی پتھروں سے بنی ہوئی تھی، لہذا قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی اور میں قبرستان کے اندر داخل ہو گیا۔ اسی لمحے میرے قریب ہی کڑکتی بجلی کا ایک لپکا ہوا اور پہلی بار میرا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ وہ دل جو دہشت سے لرزنا بھول چکا تھا مگر اس لمحے ایک بار پھر دھڑکنے لگا۔ یوں لگا جیسے آسمانی بجلی کی چکا چوند میرے دل کی سیاہ محیب دنیا میں روشنی پیدا کر گئی ہے اور میرے دل پر غفلت کا بڑا پردہ جلا دیا ہے۔ میں جہاں تھا وہیں رک گیا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا سامان نیچے رکھ دیا۔ میرا سامان نیچے رکھنے کی دیر تھی کہ دور سے ایک سنسناتی زہر میں بجھی صدا آئی، یہ کیا کر رہا ہے؟ کیا تو ڈر گیا ہے؟ یہ صابونہ کی صدا تھی جو ہمیشہ مجھے اپنا اسیر بنا لیتی تھی۔ میں نے کسی سحر زدہ انسان کی طرح سامان اٹھایا اور ایک بار پھر دل کو مضبوط بنائے آگے چل پڑا۔ قبرستان کے عین وسط میں پہنچا ہی تھا کہ بجلی ایک بار پھر قیامت خیز انداز میں کڑکی۔ یوں لگا جیسے کسی نے پھونک دیا ہو۔ لالٹین میرے ہاتھ سے گر گئی اور اس کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ نیچے پانی تھا، پانی نے لالٹین کو بجھا دیا اور اسی لمحے میری رہنما روشنی گل ہونے سے قبرستان سیاہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ مجھے اب کچھ دکھائی اور سجائی نہیں دے رہا تھا کہ میں کیسے آگے بڑھوں، مگر اس لمحے قہر و غضب میں ڈوبی ہوئی دیوس کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی، اٹھو اور ناک کی سیدھ چلتے جاؤ۔ سید کبیر کی قبر تم سے 40 قدم کے فاصلے پر ہے اور اس کے پاس ایک دیا بھی روشن ہے، تمہارے لیے اتنی ہی روشنی کافی ہوگی۔ دیوس کے غضب نے میرے ڈوبتے دل میں شیطانی قوت بھری اور میں اٹھا، مگر ابھی چند ہی قدم چلا تھا کہ ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں میرا پاؤں جا پڑا اور پھر میں قبر کے اندر جا گرا۔ کیچڑ میں لت پت گہری اور موذی کیڑوں سے بھری قبر میں گرتے ہی مجھے احساس ہوا کہ یہ میرے قد سے بڑی اونچی ہے اور اس سے باہر نکلنا آسان کام نہیں ہوگا۔ میرا یہ احساس اس وقت دہشت میں بدل گیا جب میرے ارد گرد رینگنے قبر کے کیڑوں نے میری پنڈلیوں پر کاٹنا شروع کر دیا۔ شروع میں تو میری چیخ نکل گئی اور مجھے لگا جیسے قبر میں پانی گر رہا ہو اور کوئی بڑا سا جانور چل رہا ہے۔ اسی لمحے میں نے اپنے اعصاب اور خوف پر قابو پانے کی کوشش کی اور اپنے عملیات کو استعمال کرنے لگا۔ ابھی میں نے ایک عمل کے چند لفاظ ہی پڑھے تھے کہ میری پنڈلیوں پر کاٹنے والے کیڑے تیزی کے ساتھ میرا گوشت نوچنے لگے اور پھر وہ میرے پورے بدن پر پھیلنے لگے اور میں اذیت میں مبتلا ہو کر عمل پڑھنا بھول گیا۔ میں نے ہاتھوں کی مدد سے کیڑوں کو کپڑوں سے جھاڑنے کی کوشش کی مگر کیڑے میرے کپڑوں کے اندر داخل ہو چکے تھے اور میں انہیں بدن سے جھاڑتے جھاڑتے تھک گیا اور قبر کے کیڑوں نے مجھے تازہ غذا سمجھ کر مجھ پر غلبہ پا لیا۔ مجھے احساس ہوا کہ کیڑے میرے سر پر بھی چڑھ گئے ہیں، ناک میں گھس گئے ہیں، کان اور منہ میں داخل ہو رہے ہیں اور بے بسی و لاچاری سے میں ان کی خوراک بن رہا ہوں۔ جوں جوں میرے اندر کیڑے داخل ہو رہے تھے میرے اندر سے ناگوار بو نکلنے لگی۔ یوں لگا جیسے مشروب ابلیس غلاظت کا سیال میرے بدن کے سوراخوں سے بہنے لگا ہے۔ اسی لمحے میری اذیت نشے میں بدل گئی اور مجھے ان کیڑوں کے کاٹنے سے سکون سا محسوس ہونے لگا۔
मगर जूं नहीं कीड़ों ने मेरे दिल को नोचना शुरू किया तो एक बार फिर मैं अज़ियत से चीखा, ए सच्चाई और नेकी के खालिक, मुझ स्याहकार की मदद कर। मैं उसके साथ ही बेइख्तियार आहो पुकार करने लगा और मैं अल्लाह को पुकारता रहा। कीड़े मेरे बदन नोचते रहे। फिर मैंने कलमा पाक पढ़ना शुरू कर दिया और मैं अल्लाह को पुकारता रहा। कीड़े मेरा बदन नोचते रहे और मेरी गिरियाजारी बढ़ गई। मैंने बेइख्तियार होकर उछलना शुरू कर दिया। मेरे अंदर गुनाहों और शैतानी अलूम से नफ़रत का अदराक बढ़ने लगा और मैं माही बेआब की तरह कब्र के कीचड़ में पड़ा तड़पने लगा। मैं ज़ारो कतार रो रहा था, ऐ मेरे मौला, मुझे शैतान ने जकड़ लिया था। ऐ ज़ाते करीम, मुझे उसकी गुमराही और गुनाह की स्याही से बचा ले। मेरे मौला, तू जानता है मुझे किस तरह मकरू फरेब और शर के खालिक इब्लीस ने गुमराह कर दिया और आज तेरे एक नेक बंदे की बेहुरमती पर उकसा कर मुझे यहाँ ले आया। मेरे मौला, इब्लीस के शर से बचा ले मुझे। मेरी गिरियाजारी जारी थी मगर कीड़ों को मुझ पर रहम नहीं आ रहा था। मुझे यूं लगा जैसे मेरे बदन का सारा गोश्त उतर गया है और रगों से लहू निकलकर कब्र के कीचड़ में इकट्ठा होने लगा है। मुझे हर तरफ खून ही खून दिखाई देने लगा और फिर उस खून में तपश पैदा होने लगी। उसमें उबाल आ गया और खोलते पानी और लावे की तरह उसमें बुलबुले बुलंद होने लगे और मैं खून के इस तालाब में डूबने लगा। खून किसी लावे की तरह गर्म हो रहा था और फिर यकायक हड्डियों का एक ढांचा बुलंद हुआ। उसके अस्तखवानी हाथों ने मेरी गर्दन दबोच ली और करहत अमीज़ अंदाज में बोला, तूने हमारी मेहनत ज़ाया कर दी है। ए बदबख्त जलील इंसान, तूने फर्जंदान इब्लीस की तालीमात से इनहराफ किया है। मैं तुझे मार डालूंगा। इसके साथ ही ढांचे ने मुझे खून के तालाब से उछाकर बाहर फेंक दिया और जब मैं नीचे गिरा तो इस बार उसके हाथ मेरी गर्दन पर थे। मुझे यूं लगा जैसे मेरा दम निकल रहा है। उसने अब की बार मुझे कब्र से बाहर फेंक दिया और मैं बेसद सा होकर रह गया। मगर कहरो गजब का ढांचा खुद भी बाहर निकल आया। उसके साथ ही मेरे इर्द गिर्द की कब्रें शक हो गईं और उनमें से ढांचे निकलकर मेरी तरफ बढ़ने लगे। वो मकरूह कहके लगा रहे थे। उनके हाथों में नोकीली हड्डियां थी और वह मेरी तरफ बढ़ रहे थे। फिर उन्होंने नोकीली हड्डियां, जो नेज़े से भी ज़्यादा नोकीली और तेज़ थीं, मेरे दिल के मकाम पर घोंप दी और उसी लम्हे एक तेज़ दूधिया रोशनी का झमाका हुआ। मेरा जहन तारीकियों में डूब रहा था मगर उस दूधिया नूरानी रोशनी के नमूदार होते ही कब्रस्तान शैतानी ढांचों की चीखों पकार से गूंज उठा और उनकी हड्डियों को आग लग गई और देखते ही देखते वो राख का ढेर बनकर कब्र पर गिर गए। रोशनी और नूर का सैलाब अब मेरी तरफ बढ़ रहा था। उनमें एक मुकद्दस हाला नमूदार हुआ। हाला मेरे करीब आ रहा था और मेरी आंखों और जहन की तारीकियों में उजाले पैदा होने लगे। बेनूर घायल दिल को राहत मिलने लगी। नूर के इस हाले से एक हाथ नमूदार हुआ और उसने मेरे सर पर अपना साया कर दिया। मुझे यूं लगा जैसे मैं ये मंज़र पहले भी कहीं देख चुका हूँ और फिर मुझे याद आ गया। ये मंज़र उस ख्वाब की हकीकत थी जो मैं बरसों से देख रहा था। मैं मबहूत और सहरज़दा सा होकर उस मुकद्दस हाथ को देखने लगा। मेरे बेकरार और ज़ख्मी बदन को गोना सा करार मिलने लगा मगर दिल गिनाह आलूद ज़िंदगी के शब व रोज़ को याद करके तड़पने लगा। इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि कभी शैतान का आलाकार बन जाऊंगा। अपनी बेबसी पर नूहा कना था। मुझे उसी लम्हे खुद से घिन आने लगी और दिल चाहा कि ज़मीन फट जाए और उसमें मैं समा जाऊं। मुझे अब इस अज़ियत पर भी अफसोस हो रहा था जो कीड़ों के काटने से हुई थी। ये मेरी सज़ा थी कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ। तू पैदाशी शैतान का दुश्मन था और शैतानी अलूम से भी नफ़रत करता था मगर मुझे क्या मालूम था कि ज़िंदगी मुझे यूं भी धोखा दे देगी।
मुकद्दस हाथ की उंगलियां अब भी मेरे सर के बालों को सहला रही थी, और फिर मुझे यूं लगा जैसे मेरी आंखें बूझल हो रही हैं। और फिर चंद लम्हों बाद उस मसीहा ने मुझे दुखों और परेशानियों की दलदल से निकाल कर गहरी नींद सुला दिया, और न जाने कब तक मैं सोया पड़ा रहा। जब आंख खुली तो ये माहौल यकसर मुख्तलिफ था। मैं उठ पड़ा और चौंक कर गर्दो पेश में देखने लगा। मेरे सर के नीचे एक चटाई पड़ी थी, पास ही जाए नमाज थी और मट्टी का ही एक लोटा पड़ा था। ये हुजरा था जिसके दरवाजे पर पर्दा लटक रहा था। मैंने पर्दे को हटाकर देखा तो सामने एक मज़ार नजर आया। ये शाम का वक़्त था। मैं सोचने लगा कि मैं यहाँ कैसे पहुँचा हूँ और मुझे कौन लाया है। मुझे सब कुछ याद आ गया, और उसके साथ ही मेरे दिल की बेकली एक बार फिर बढ़ गई। ऐ मेरे मौला, मुझे माफ़ कर दे। मेरे दिल से कराह निकली और मैं हुजरे की खस्ता दीवार का सहारा लेकर नीचे ढह गया और ज़ारों कतार रोने लगा। जब मेरा दिल मलामत के गुबार से खूब हल्का हो गया तो मैंने घड़े से पानी पिया, और फिर हुजरे से बाहर निकलने की बजाय उसे पानी से वज़ू करके जाए नमाज बिछाई और अल्लाह ताला के हजूर खड़ा हो गया। मैं जो कभी नमाज कज़ा ना करता था, अब इस बात पर भी परेशान था कि ना जाने कब से नमाज नहीं पढ़ी। मैं अल्लाह से तौबा करता रहा, और फिर इसी तरह घंटों बीत गए और हुजरे में तारीकी बढ़ गई। मैं भूखों प्यास से बेगाना होकर मसल्ले पर ही बैठा रहा और वहीं बैठे बैठे सो गया। ना जाने रात का कौन सा पहर था जब हुजरा नूरानी रोशनी से भर गया और मेरी आंख खुल गई। वही मुकद्दस हस्ती अपने नूर के साथ ज़ाहिर हो चुकी थी। मैं होश में आते ही आहोजारी और खुद पर मलामत करने लगा। उस पर नूरानी और मुकद्दस हाथ हुजरे की फिजा में लहराया और रोशनियां और खुशबू की लपेटें मेरी आंखों और सांस को मुअत्तर कर गईं। ऐ इंसान, तू सच्चाई का मीनारा था। ये एक ऐसी आवाज़ थी जिसमें हकीकत की मिठास हो, मगर शैतान ने तुझे बहका दिया, तुझे राह से हटा दिया। ये इंतहाई अफसोस और तड़प में डूबी हुई सिसकी थी। गर्ज ये कि गैर मरी लबों से निकलने वाली हकीकतें, सिसकियाँ और तेज़ी तलखी और सरदंश में डूबी आह मेरे समाज से टकरा रही थी, और मैं दम बखुद दूर फिजाओं में घूर रहा था। फिर अचानक वो आवाज़ रुक गई, हवा की सरसराहटें थम गईं और मैं बदहवास होकर इधर उधर देखने लगा। मैं कुछ भी तो ना देख सका, कुछ भी ना समझ सका, हालांकि वो आवाज़ मेरे दिल में उतरती चली गई थी। काश वो कुछ और कहे, मैंने दिल में सोचा, मगर जैसे ही मेरे दिल की आवाज़ मेरी ख्वाहिश सुन ली, समझ ली, और फिर वही आवाज़ उभरी, अफसोस, तूने अपने आप को खो दिया, अपने आप को मार दिया, मगर सच्चाई तेरा पीछा करती रही। वक़्त तेरे ताक़ुब में रहा, लेकिन बदी की कुव्वतों ने तुझ पर गलबा पा लिया, तो शैतान के एक चुंगल में फंस गया, उलझ गया, जिसमें बड़े बड़े जाहद झोलते और कलाबाजियाँ खाते रहते हैं। ये ठीक है कि अल्लाह के नेक बंदे भी लग़्ज़श खाते हैं, उनके कदम भी बहकते हैं और वो गुमराहियों की भूल भलियों में खो जाते हैं, मगर फिर संभल जाते हैं और उसका तावान अदा करते हैं। खुदा से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं और अपने कल्ब को नूरे इलाही की चांदनी से धोते हैं। बरखिलाफ़ इस राह हक हटने वाले वो नादान जो ये समझते हैं कि बदी की ताकतें उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगी, वो सख्त गलती पर है। बदी फिर बदी है, और ये कि किसी का साथ नहीं देती, किसी की हिफाजत नहीं करती, ख्वा अपना हो या पराया, नहीं जानता। मगर हम जानते हैं कि बदी से नेकी की तवक्का अबस और बेकार है। तू नहीं जानता, मगर हम जानते हैं। सैकड़ों सदियां गुजर चुकी हैं और हमने सारी दुनियाएं देखी हैं। शैतान के बड़े बड़े पुजारी गुजरे हैं और उन्होंने शैतानी अकीदों को फैलाने की बहुत कोशिश की, मगर खुदाए जुल जलाल उनकी गर्दनों में गुमराही के तौक डाल दिए हैं या उन्हें नीस्त व नाबूद कर दिया है। तू नहीं जानता, मगर जानते हैं कि ए गुमराह इंसान, यकायक फिजा में रोशनी का एक लपका हुआ, एक चंगारी चमकी, फिर एक सर्द शोला उभरा और देखते ही देखते वो नूर का हाला बन गया। फिर ये हाला तारीक फिजा में उभरने लगा। मैं चौंक पड़ा
आंखें मलने लगा, क्योंकि ये हाला अपने चारों तरफ रोशनियां बखेर रहा था। कभी वो सिमट कर रोशनी का नुक्ता बन जाता और कभी आहिस्ता आहिस्ता फैलता और एक शोला ज्वाला की शक्ल इख्तियार कर लेता। तू सुन रहा है ए गुमराह इंसान? वो शोला नुमा नुक्ता गरजा, जैसे वो जलाल में आ गया हो। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, मगर, और सहम कर खामोश हो गया। अब नूर का वो नुक्ता फैलना शुरू हो गया, जैसे उसमें लकीरें नमूदार हो रही हों और वो गैर मरी कोई मरी सूरत इख्तियार कर रहा हो। फिर स्याह और तारीक समुंदर में जैसे मुकद्दस रोशनी का सैलाब आ गया हो, और फिर मैंने देखा कि वो नूरानी नुक्ता एक नूरानी पीकर में ढल गया। सरतापा नूर ही नूर। मेरी झपकती और बहकती आंखें ठहर गईं और मेरे सामने एक नूरानी पीकर पूरे जाहो जलाल से ऐस्तादा था। फिर मुझे उसकी रोशनी और चमकदार आंखें नजर आईं, जिनमें बला की जहानत अंगड़ाइयाँ लेती नजर आ रही थी। उसकी सफ़ेद बर्राक दाढ़ी बहुत भली लग रही थी। फिर वो नूरानी पीकर 2 कदम आगे बढ़ा और मेरी नज़रें अकीदत से झुक गईं। ए अकीदतमंद, नज़रें उठा और हमें देख, हमें पहचान, हम बदी के पीकर नहीं हैं। आप, मैंने अदब से सर उठाया और फिर मेरी ज़बान से निकला, मगर मैं आगे कुछ ना कह सका। हाँ, तूने सही पहचाना, वो पीकर गोया हुआ। ये हम हैं, जिन्नात के बेटे हामा बिन हमिल बिन लाकीस बिन इबलीस, शैतान मरदूद के पड़पोते। हमारा सिलसिला इबलीस से मिलता है, मगर हम जिन्नात कहलाते हैं। मेरी गोश होश से टकराती हुई ये आवाज़ चंद लम्हे के लिए रुकी, मगर ये सिलसिला फिर शुरू हो गया। वो नूरानी पीकर कहने लगा, ए इंसान सुन, हम हैं जिन्नात। कभी हम भी शैतान कहलाते थे, मगर जब हमने अल्लाह की अताअत शुरू की और बदी और गुमराही से तौबा कर ली, तो हम जिन्नात कहलाने लगे। मगर हमारे भाई बंद जो इबलीस की तालीमात और उसके नक्शे कदम पर चलते रहे और जिन्होंने बदी का रास्ता इख्तियार किया, वो शैतान कहलाए। मैं उस गुफ्तगू से बेहद मुतासर हुआ और मैंने नदामत का इजहार किया। ए खुदा के नेक बंदे, तूने मुझे गुमराही और कज रवि से बचा लिया, वरना मैं हमेशा इस कार में ज़ल्लत में पड़ा रहता। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं किस ज़ुबान से तेरा शुक्रिया अदा करूं। पीकर नूर हामा ने जवाब दिया, ए खुदा के बंदे, अगर तुझे शुक्रिया ही अदा करना है तो उस खालिक़ो मालिक का शुक्रिया अदा कर, जिसका मैं भी तेरी तरह एक अदना गुलाम और हकीर बंदा हूँ। शुक्र है इस पाक परवरदिगार का, जिसने तेरी ज़रिए मेरी हदायत की और दुरुस्त और सही रास्ता दिखाया। मैंने बड़े इज्जत से कहा, हामा मुझसे बेहद खुश हुआ, क्योंकि मैंने उसके हुक्म के मुताबिक अल्लाह तबारक ताला की शुक्रगुजारी का इजहार किया। मेरे सवाल पर उसने कहा, ए अल्लाह ताला के बंदे, तूने मेरे कहने पर अमल किया और अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल की। मैं तुझे जिन्नात और शैतान के बारे में बताऊंगा कि अल्लाह ताला की कायनात में बिखरी है ये मखलूक कौन है और ये क्या कर रही है। फिर चंद लम्हे रुक कर उसने बताना शुरू किया। अल्लाह पाक ने अर्ज़ी और समावी, ज़मीन और आसमान मखलूक को 5 मुख्तलिफ कुव्वतों, यानी कि नंबर 1 अक्ल, नंबर 2 वहम, नंबर 3 ख्याल, नंबर 4 शहवत और नंबर 5 गज़ब से तरतीब और तरकीब से देकर पैदा किया है। इस तरह तरकीब अज्जा और कफ़ियत की निस्बत मखलूक़ात आलम की 4 किस्में हैं। मैं अभी बयान करता हूँ। हामा की बातें दिलचस्प भी थीं और मेरे लिए नई भी, इसीलिए मैं उसकी हर बात बड़ी तवज्जो से सुन रहा था। फिर हामा ने बताना शुरू किया, मखलूक़ात आलम की पहली किस्म वो है जिसकी अकली कुव्वत, वहमो ख्याल और शहवत और गुस्सा गज़ब पर गालब होती है। यानी अकली कुव्वत के सामने इन चीज़ों का हुक्म बेहकीकत और बेमैनी होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे मुर्दा गुस्ल देने वाले के हाथ में बेबस और फरमाबरदार होता है। इस तरह ये 4 कुव्वतें अकली कुव्वत के मती हैं। इस मखलूक का नाम फरिश्ता या रूहानियात है। असलाह शरा में इस मखलूक को मलाइका, अरवाह या मलकूत, जिसे फ़ारसी में सरवश कहते हैं,
मखलूक़ात आलम की ये नूह हर किस्म की ख़ताओं और गुनाहों से पाक व साफ़ है। ये मखलूक औरत की ख्वाहिश से भी मबरा है, खाने पीने की चीज़ों से भी उसे कोई दिलचस्पी नहीं। ये मखलूक कुव्वत अक़लिया के गलबे के सबब खुद को किसी भी सूरत में मुतशक्ल कर सकती है। दूसरी किस्म की मखलूक वो जानदार शामिल हैं जिनकी अक्ल शहवत, गज़ब और वहमो ख्याल के ताबे होती है। इस मखलूक की तजसीम हवा और आग से मरकब है। मादा की लताफत के सबब ये मखलूक भी हर सूरत में मुतशक्ल हो सकती है। वहमो ख्याल की गालिब कुव्वत की वजह से ये मखलूक खुद को खौफनाक से खौफनाक सूरत में तब्दील कर सकती है। इस किस्म से जो खल्क़े खुदा को सताती है उसे शैतान, और जो खल्क़ो तकलीफ़ नहीं देती वो जिन कहलाती है, और शरई एतबार से ये अहकाम इलाही की पाबंदी करती है। इसको इस तरह भी कहा जा सकता है कि बाद जिन्नो दीनदार और हुक्म खुदाबंदी की पाबंदी करते हैं। कुछ जिन शरई अहकाम को कबूल नहीं करते और वो काफिर और गुमराह हो जाते हैं। तीसरी किस्म की मखलूक में वो जानदार शामिल हैं जिनकी अक्ल और वहमो ख्याल पर शहवत और गज़ब गालिब होता है। उन जानदारों में अक्ल नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं। अक्ल से बेबहरा उस मखलूक की भी दो किस्में हैं, और ये दोनों हैवानात होते हैं। इनमें वो हैवानात जिन पर शहवत गालिब होती है उन्हें बहाइम के नाम से, और जिन पर गज़ब गालिब होता है उन्हें सबाह या दरिंदे के नाम से पुकारा जाता है। हामा की बयान की हुई बातें मेरे लिए ना सिर्फ बिल्कुल नई थी बल्कि इंतहाई दिलचस्प और अजीबो गरीब थी। चुनाचा मैं हामा के सामने और ज़्यादा मुअद्दब हो गया और अपना ध्यान उसकी बातें सुनने के लिए पूरी तरह लगा दिया। उसने मेरा इन्हमाक देखा तो खुद ही बोलना शुरू कर दिया। उनमें पहली किस्म की मखलूक यानी फरिश्ते जो हर किस्म की खता गुनाह से पाक हैं, उनके क़याम का मकाम आसमान मुकर्रर किया गया है। आलम बाला का इंतज़ाम और आराइश व ज़िबाइश की ज़िम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। उनकी दूसरी किस्म की मखलूक यानी जिन्नात को ज़मीन पर आबाद किया गया और उनके इख्तियार में तमाम नबातात यानी ज़मीन से उगने वाली चीज़ें जैसे घास और दरख्त वगैरह, और ज़मीन से निकलने वाले ख़जाने जैसे सोना, चांदी, लोहा, पत्थर वगैरह के अलावा हैवानात और चरिंद परिंद भी उनके तसर्रुफ़ और इख्तियारात में दिए गए। एक नेक इंसान, तुम मेरी बातों को इस कदर तवज्जो से सुन रहे हो कि मैं तुम्हें मायूस नहीं कर सकता, मगर इस वक्त मुझे कुछ काम है। हामा किसी ज़रूरी काम से चला गया और मैं उसकी बातें याद करके हैरान हो रहा था। मैं इसी अधेड़ बन और सोचो विचार में गिरफ्तार था कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पलट कर देखा तो वो हामा था। मैंने उससे पूछा कि आप किसी काम से गए थे, वो काम हुआ कि नहीं? उसने जवाब दिया, अभी आधा काम भी नहीं हुआ है, मुझे फिर जाना है। मेरे पास फारग वक़्त था, इसलिए सोचा कि यह वक़्त तुम्हारे पास गुजारूं। इसी ख्याल से वापस आ गया हूँ। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, आपके जाने से मेरा दिल बस उदास हो गया था, क्योंकि आप जिन्नात के बारे में पूरे हालात और वाक़यात सुना चुके थे। अब आप वापस आ गए हैं, इसलिए मैं जिन्नात के सिलसिले में आपसे मज़ीद कुछ मालूमात हासिल करने की ख्वाहिश करूँगा। ज़रूर, उसने खुश दिली से जवाब दिया, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूँगा और कौम जिन्नात के बारे में पूरी तफसीलात से आगाह करूँगा। हामा ने मुझे हौसला दिया तो मैंने पूछा कि अगर आप मुझे जिन्नात की तख्लीक के बारे में कुछ बता सकें तो आपकी मेहरबानी होगी। क्यों नहीं, हामा ने जवाब में कहा, सिर्फ जिन्नात की तख्लीक ही के बारे में नहीं बल्कि मैं तुम्हें उनके तमाम कारनामों से भी आगाह करूँगा और ये भी बताऊँगा कि उन्होंने क्या क्या गलत काम किए हैं। आप बयान फरमाइए, मैं गोशे बर आवाज़ हूँ। मैंने मुतशक्कर नज़रों से हामा को देखते हुए कहा। हामा ने बड़े सुकून और इत्मीनान से बताना शुरू किया, ऐ इंसान, इस कहानी का आगाज़ तुम्हारे जद्दे अमजद यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के 1.25 लाख साल पहले शुरू होता है। अभी आदम अलैहिस्सलाम को पैदा नहीं किया गया था।
اللہ تعالیٰ نے اپنی کائناتیں تخلیق کرنے کے بعد فرشتوں اور جنات کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ایک آگ پیدا فرمائی، اس میں نور بھی تھا اور ظلمت بھی۔ فرشتے اللہ پاک نے اپنے نور سے پیدا کیے۔ یہ نوری اور معصوم مخلوق اللہ کی اطاعت گزار ہے، گویا ہر طرح کی خطا اور نافرمانی سے پاک ہے۔ ذات کریم نے انہیں آسمان پر رہنے کے لیے جگہ دی۔ فرشتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگ سے ہم کو یعنی جنات کو پیدا کیا۔ جنات کے مادے میں آگ کا نور اور ظلمت دونوں چیزیں تھیں۔ اس میں سے بعض ایمان کے نور سے مشرف ہوئے اور بعض کفر و گمراہی میں مبتلا ہو کر شیطان کہلائے۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے جس جن کو تخلیق کیا اس کا نام مارج تھا۔ اللہ پاک کی ذات کریم نے فرشتوں اور جنات کی فطرت میں ایک واضح فرق رکھا۔ فرشتوں کی عقلی قوت و ہم خیال اور شہوت و غضب پر غالب ہے، اور چاروں عناصر اس کے محکوم ہیں۔ فرشتے معصوم اور پاک ہیں، وہ کھانے پینے، عورت کی خواہش اور ایسی چیزوں کے محتاج نہیں۔ اللہ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے، لہٰذا وہ قوت عقلیہ کے غلبے کے باعث جس وقت میں چاہیں متشکل ہو سکتے ہیں۔ مگر اے انسان، جنات کی عقل پر شہوت، غضب و وہم کا خیال کا غلبہ ہے۔ یہ فرشتوں کے لیے برعکس ہیں، چونکہ ان کی تخلیق آگ اور ہوا سے مرکب ہے۔ مادہ کی لطافت کی وجہ سے یہ بھی صورت و شکل کے تغیر و تبدل پر قادر ہیں۔ اللہ نے جنات کو بہت سی قوتیں عطا کی ہیں، اور ہم اپنے جسم کثیف کو ثقیل گویا ہر شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ جنات کے اندر بھی انسانی و خاص فطرت کے مظاہر پائے جاتے ہیں، چونکہ ہماری فطرت میں اللہ نے فطرتی عناصر سب و قوت، وہم و خیال اور شہوت کا مادہ رکھا ہے، لہذا جن جنات کی عقل پر غضب اور بدی عناصر غالب آتے ہیں وہ سرکش و نافرمان ہو جاتے ہیں اور شیطان کے قبیلے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ کائناتیں اور آسمانوں کی دنیاؤں کی تخلیق کے مدارج طے ہو چکے تھے۔ فرشتے حکم الہی سے مستغرق رہتے تھے اور ان کی افزائش امر الہی سے ہوتی تھی، لیکن جب مارج جنات کو پیدا کیا گیا تو اس کے فطری تقاضے اود آئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک بیوی تخلیق کی۔ اس کا نام مارجہ تھا، یعنی ہمارے اور شیاطین کی جد و امجد۔ ہماری افزائش کا یہ علم تھا کہ ایک حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تو آسمان پر رہائش عطا کی اور جنات کو زمین پر اتار دیا۔ مارج اور مارجہ میں غضب کا قہر تھا، مگر وہ عبادت الہی کی عبادت و تکریم سے غافل نہ تھے۔ وہ آسمانوں پر فرشتوں کے پاس جاتے اور الہی کے لیے حمد و ثنا سیکھتے اور آ کر اپنی اولاد کو ان تعلیمات سے بہرہ مند کرتے۔ ان کی اولاد تو بڑھتی رہی، مگر ان میں سرکشی کا عنصر بھی بڑھنے لگا اور ان میں لڑائی جھگڑے ہونے لگے۔ مارج اور مارجہ کی نسل کی تعداد جب 70,000 سے تجاوز کر گئی تو جنات کئی قبیلوں میں بٹ گئے۔ ان کا سب سے بڑا قبیلہ بنو الجان تھا، اور ہر قبیلے کے ہر جن کا سلسلہ مارج اور مارجہ سے ملتا تھا۔ اگرچہ باقی جنات بھی مارج اور مارجہ سے تھے، مگر جب نسلیں ترقی کرتی ہیں تو وہم بھی جنم لینے لگتے ہیں۔ قہر و غضب، آگ اور ہوا کی مخلوق جنات نے دنیا میں فسادات برپا کرنے شروع کر دیے۔ زمین جو حکم الہی سے ہمیشہ سر بسجود رہتی تھی، جنات کے شر سے عاجز آنے لگی۔ فرشتے زمین کی آہ و پکار اور دل گداز فریادیں سنتے اور اللہ پاک کی زمین کی بپتا اور سرکش جنات کے حالات سے آگاہ کرتے، مگر یہ حکم الہی تھی کہ سرکشی پر کوئی عذاب نازل نہ کیا گیا۔ صدیاں بیت گئیں۔ جب مارج اور مارجہ کی نسل 70,000 سے تجاوز کر گئی تو ایک روز
मारज दिल फगार लेकर बारगाहे इलाही में हाजिर हुआ और सजदे में गिरकर अपनी इज्जो इनकसारी और बेबसी का अजहार करते हुए अर्ज की, ए ज़ाते किब्रिया, ए जहानों के खालक, तूने हमें पैदा किया कि तेरी इबादत करें, मगर ए मौला, फरिश्ते जो तेरे नूर की तख्लीक है और हम नार समूम की तख्लीक, यानी मैं अपनी नस्ल की सरकशी, उसकी नाफरमानियों से आजिज आकर तेरी पनाह चाहता हूँ। मेरी सरकश नस्ल के झगड़ों से ये गिरिया जारी है, मेरी नस्ल के कहरो गज़ब और उसके फितरती तकाज़ों पर नेकी और रासत बाजी को गालब कर दे। मारज की ये गिरिया जारी के नतीजे में रब्बे जुल जलाल ने सरकश जिन्नात को सिराते मुस्तकीम चलने और उन्हें एक अल्लाह की तालीमात इख्तियार करने के लिए मारज को तबलीग का हुक्म दिया। मारज अहकामात इलाही के आगे सर झुकाया और हम्दो सना करता हुआ वापस ज़मीन पर नज़ूल किया और आते ही अपनी बीवी मारजा को अहकामात इलाही से आगाह किया और कहा, ए मेरे गमगुसार, तुम्हें भी अपनी गुमराह नस्ल को राह रास्त पर लाने के लिए मेरा साथ देना है। आज अपनी औलाद को इकट्ठा करो और सबको पाबंद कर दो। आज जब सूरज डूब रहा हो तो इस वसीओ अरीज मैदान में इकट्ठे हो जाएं, जहां अल्लाह ताला ने हमें आसमान की बुलंदियों से उतारा था। मारजा ने अपने शोहर की हदायत पर अमल किया और मारज की औलाद और उसकी कबाइल में मनफी औलाद मैदान में इकट्ठा हो गई तो मारजो हमदो सना के साथ चबूतरे पर खड़ा हो गया, जहां वो बैठकर अल्लाह की इबादत किया करता था। मारज के साथ मारजा भी चबूतरे पर खड़ी हो गई और अपनी उस औलाद के हजूम बैकरा को देख रही थी, जिसके कहरो गज़ब और बाहमी झगड़ों ने उन्हें मुतजम्मल कर दिया था और उन्हें गमान था कि जिन्नात सिराते मुस्तकीम पर कायम न रहे तो रब्बे जुल जलाल के जबरो गज़ब का निशाना बन जाएंगे।